जय वाल्मीकि जी, जय भीम, जय सेवा जोहार। कल एक वीडियो शेयर की थी मैंने डॉक्टर देवेंद्र गुगलानी की। काफ़ी गुस्से में भी थे वो, और गुस्सा बनता भी है। जाहिर है कि जब आपके जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर सफाई की पूरी व्यवस्था नहीं होगी तो गुस्सा तो जाहिर ही है। आज एक और उनकी वीडियो आई थी, वो मैं देख रहा था। उसमें उन्होंने काफ़ी जैसे जैसे सिक्योरिटी के बारे में बताया है कि सिक्योरिटी यहाँ क्या है। विदाउट नेम प्लेट वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड है वो घूम रहे हैं। उनको पूछा जा रहा है कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। उनका वहाँ बॉस भी है जो सिक्योरिटी का इंचार्ज है वो, जिसने कहा कि नहीं ये होते हैं। किसी ने सिक्योरिटी गार्ड कह रहा है कि पिन हमारा जो टूट गया था, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन ये शक के दायरे में सभी कुछ आता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले वहाँ पर जो वहाँ का आश्रम के झंडे होते थे, इसको जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जब गुरु ज्ञाननाथ जी जहाँ आए थे तो उन्होंने वहाँ एक आश्रम बनाया था, तो फिर धीरे धीरे वो आश्रम जैसे बढ़ता गया। वहीं पर ये जो भव्य मंदिर बना है, जो 1901 में प्रस्ताव पास हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि हमारा झंडा जो लाल होगा, तो गुरु ज्ञाननाथ जी ने वही झंडा अपनाया और उस पर तीर कमार का निशान बनवाया, क्योंकि हम ट्राइब से आते हैं, उनका ये कहना था। तो इसलिए जो ये झंडा था उनका, जो उन्होंने दिया था हमारे समाज को, वो था लाल झंडा था और उस पर तीर कमान था। कोई प्लेन लाल झंडा नहीं था, क्योंकि उनका कहना था कि जो तीर कमान है वो हमारी निशानी है, आदिवासियों की निशानी है। इसलिए हम उसको जरूर अपने जो झंडे पर सुशोभित करेंगे। तो वो झंडा उन्होंने ऐसे दिया था समाज को। आइए पहले वो वीडियो देखते हैं, फिर मैं आपको और डिटेल में लेकर जाता हूँ इसके बारे में। मैं डॉक्टर ਦਵਿੰਦਰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਿੱਠਾ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਫਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬਾਹਰਦਿਆਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੈਰਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕੌਣ ਨੇ, ਕੀ ਨੇ, ਕਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੋਂ ਹੈ, ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਚੋਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਪਿੱਛੋਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਪੈਨ ਟੁੱਟ ਗਈ? ਪੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਸਿਵਲ ਚ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਝੰਡੇ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨੇ ਸੁਪਰ ਆਜੋ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਆ ਨਾਮ ਲਾਉਣ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਨੇਮ ਪਲੇਟਾਂ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਨੇਮ ਪਲੇਟ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਪਿੱਛੋਂ ਡੀਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਾ ਲਾਉਣ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ, ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਸਿਵਲ ਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ? ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਪੁੱਛੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੋਣੀ, ਲਾਉਂਦੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਲੱਗ ਜੂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਕੱਲ ਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤਰ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਚਾਹੇ ਹੋਣੇ ਬੰਦੇ? ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਫॉर ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਾਕੀ ਨੀਰੋ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾइन बोर्ड ਦਾ चेयरमैन कैप्टन अमरिंदर सिंह है। तो आपने ये वीडियो देखी, उसमें वे ये जिक्र कर रहे हैं कि जो हमारे निशान साहब थे
वो वहाँ से कैसे गायब हो गए, और सिक्योरिटी कैमरा हमें वो फुटेज क्यों नहीं दिखाई दे रहा, जैसे और काफ़ी कुछ उन्होंने सिक्योरिटी के बारे में भी कहा है। अगली वीडियो वो कह रहे हैं कि हम ज़रूर जल्द ही देंगे। हम झंडे के बारे में बात कर रहे थे कि जो झंडा है वो कैसे वहाँ से गायब हो गया, जो हमारा निशान साहब था वो कैसे वहाँ से गायब हो गया, इसके बारे में ज़्यादा गंभीरतापूर्ण सवाल उठ रहे हैं। जो जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो हमारा निशान था, लाल झंडा था, उस पर 1901 से पहले जो हमारा झंडा था वो हरे रंग का था। फिर 1901 के बाद जब वाल्मीकि सभा जो होंद में आई, तो उसके बाद इस झंडे का रंग जो लाल कर दिया गया था, और इसको इस तरह से लाल किया गया था क्योंकि शास्त्रों में इसके बहुत प्रमाण मिलते थे कि जो आदिवासी थे उनके जो झंडे थे वो लाल थे, तो इसलिए ये झंडा लाल दिया गया था। उसके ऊपर तीर कमान बनाया गया था जो कि वहाँ से शोभित किया गया था, लेकिन पता नहीं कैसे वो वहाँ से गायब हो गए। इसलिए वो अमरिंदर सरकार से भी काफ़ी यहाँ गुस्से में हैं और सवाल भी कर रहे हैं उनसे कि ये क्या सिस्टम कर रहे हैं आप। झंडे के बारे में अगर मैं थोड़ा तफसील से बताऊंगा तो उसमें काफ़ी लंबी वीडियो वो बनेगी। मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बताऊंगा आपको। गुरु ज्ञाननाथ 1901 में झंडा दिया गया लाल। 1935 के करीब जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं 1922, लेकिन 1934-35 के करीब जो ये आश्रम बन गया था उस वक्त लाल झंडा और उस पर तीर कमान दिया गया था अलग निशानी के लिए कि हमारी अलग निशानी है, क्योंकि लाल झंडा बहुत जगह लगा हुआ है, इसलिए तीर कमान दिया गया था क्योंकि ये हमारी अलग निशानी है कि आदिवासियों का ये झंडा है। फिर उसके बाद उनके जो शिष्य थे वो अलग अलग होते गए, जैसे जैसे बहुत सारी जगह पर ये झंडा सेम ही रखा गया। जो उनके आश्रम, जो उनके नाम पर आश्रम है, उन आश्रमों में ये झंडा सेम ही रखा गया, लेकिन जो उनके आश्रमों से हटकर आश्रम बने थे वहाँ झंडे का रंग तब्दील होता गया। जैसे प्रभु रत्नाकर जी ने झंडा फिर बनाया था, 4 रंग का बनवाया था। फिर उसके बाद उनके चेले जो थे, उनके जो शिष्य थे, उन्होंने अलग अलग फिर झंडा वहाँ से निकाल लिया। वो अपने संगठन को जैसे अलग पहचान देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अलग अपना झंडा बनवाया और उसको जैसे उसका काफ़ी प्रचार किया कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब है, इसका मतलब वो है। उन्होंने अपने हिसाब से अलग अलग तरह से वो प्रचार किया। लेकिन उस वक्त जब इन्होंने ये जो झंडे बनवाए थे, जो निशान साहब बनवाए थे, उन्होंने कहा था कि ये हमारी संस्था के हैं, लेकिन धीरे धीरे वो कहने लगे कि नहीं, ये कौम के हैं, और फिर धीरे धीरे नहीं, ये आश्रम के हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो आश्रम के झंडे नहीं है। आश्रम की तरफ से झंडे जो थे वो लाल रंग के थे और उस पर तीर कमान का। इसके बारे में आपको काफ़ी डिटेल में पुस्तकों में मिल जाएगा। एक मेरे पास पुस्तक आई थी सर इव्स्टन की, उसमें काफ़ी तफसील से उन्होंने सर इव्स्टन ने लिखा था। उनका नाम पूरा था सर डैनियल इव्स्टन। तो उसमें उन्होंने एक जैसे दी थी, उनकी एक बुक थी, उनकी काफ़ी बुक्स थी, लेकिन जो मेरे हाथ आई और जो बहुत बढ़िया लगी वो मैंने अपने समाज के प्रचारक जो थे उनकी बुक से उनका नाम पढ़ा था, तो वो मैंने उसकी रिसर्च की, तो मुझे वो बुक हाथ लगी थी। वो प्रचारक थे पंडित बख्शी राम जी, जो गांव मंडाला में वाल्मीकि जो घर में पैदा हुए थे। उनकी नॉलेज के बाद उनको पंडित जी कहा जाने लगा। उनके पास इतनी नॉलेज थी, शास्त्रों की नॉलेज थी, संस्कृत की नॉलेज थी। वो आज़ाद हिंद फौज में भी रहे, तो इसलिए उनको पंडित जी कहा जाने लगा था। उस पुस्तक का नाम ग्लॉसरी ऑफ द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ द पंजाब। ये अगर आपको पुस्तक मिले तो ज़रूर पढ़ना। इसमें काफ़ी तरह उन्होंने काफ़ी जगह जैसे हमारे निशान का, जहाँ जो ट्राइब्स थे हमारे, उनके बारे में और हमारी जात के बारे में वहाँ लिखा है कि कैसे ये जात होंद में आई और कैसे कैसे उन्होंने अब सर्वाइव किया और कैसे
इनमें से ही कैसे कैसे और जात निकली। तो उसमें से काफ़ी उन्होंने उसमें काफ़ी इसके बारे में लिखा है। जैसे आपको पता है कि जो वाल्मीकि जाति है, पहले इनको चूड़ा कहा जाता था और कई नामों से इनको पुकारा जाता था, तो उन्होंने वही नाम उसमें शामिल किए हुए हैं। मैं आपको पहले बता दूं, वो वही नाम है इसमें शामिल किए जो हमें पुराने नामों से जाना जाता था। तो बाद में कैसे हम तब्दील हुए और कैसे कैसे हम दूसरे नामों में तब्दील होते गए, इसके बारे में उन्होंने काफ़ी तफसील से लिखा है। तो मैं वहीं फिर आता हूँ झंडे की तरफ कि कैसे वो तब्दील हुआ था। और जो गुस्सा है, जो वाल्मीकिन है, जो वहाँ के सेवादार हैं, जो गुरु ज्ञाननाथ जी से जुड़े हुए हैं, उनको किस लिए गुस्सा है कि झंडे वहाँ से उठा दिए गए थे? इसलिए उनको गुस्सा था कि जो संगठन सिर्फ अपनी अलग पहचान देने के लिए अपना अलग निशान, परमात्मा का अलग स्वरूप वगैरह वगैरह देते थे, वो संगठन अब कह रहे हैं कि वो झंडे और वो परमात्मा स्वरूप वो सेम ही होना चाहिए यहाँ भी। ये काफ़ी देर से ये चल रहा है। इसके बारे में जैसे 1980 में ये काफ़ी फैलाव होता गया इसका। 1982 और 84 में आदर्श जब होंद में आई, भावादस होंद में आई। अब भावादस पहले भी होंद में थी, लेकिन रंग था चुरंगा। उसके बाद नीला रंग होता गया, उसके बाद रंग जो बदलता गया, कैसे कैसे जो फिर वो उनसे निकलते गए बातें, क्यों है ये झंडे का रंग, कैसे है ये झंडे का रंग, ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें निकलती गई। लेकिन मैं भी हमेशा कहता हूँ, मैं आपको पहले बता दूँ, ना मैं किसी संगठन के साथ हूँ और ना मैं किसी संगठन का समर्थन करता हूँ। मैं उसी का समर्थन करता हूँ जो शुरू से चला आ रहा है इतिहास। मैं इतिहास का समर्थन कर रहा हूँ। तो जो कह रहे थे कि जो झंडे ये हैं, जो रंग है ये हमारे ये अलग है क्योंकि हमारा संगठन अलग है, ये हमारे संगठन के झंडे हैं, वो अब क्लेम कर रहे हैं कि ये झंडे जो है वहाँ लगने चाहिए जो वाल्मीकि आश्रम है अमृतसर में। इसलिए ये सारा झगड़ा शुरू हुआ था। लेकिन जो वाल्मीकि थे वहाँ आश्रम में, वो कह रहे थे कि ऐसे नहीं हो सकता, जो शुरू से चले आ रहे हैं झंडे वो ही यहाँ रखने चाहिए। लेकिन प्रशासन ने वहाँ से झंडे उठा दिए और पता नहीं चला किसने उठाए हैं, क्यों उठाए और कहाँ चले गए। इसलिए ये सब गुस्सा बाहर निकल कर सामने आ रहा है। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय सेवा जोहार।